Hello dear students, welcome back to your own channel Digitonus, your gateway to digital education. Now this video is going to be in continuation of my last two videos for class 9th students, those who have opted information technology IT 402 as their additional subject. In our last two videos we have discussed unit 5 digital presentation and we have covered so many topics, basics about the digital presentation, basics and introduction about the PowerPoint software. Then we have discussed about the parts or components of the PowerPoint window. What are the characteristics of a good presentation? Then we have discussed how to create a presentation using a blank presentation or using templates, saving a presentation or saving a presentation with different name, shortcut keys. Then we have worked with the slides, how to insert duplicate slide, how to copy or move a slide, then slide layouts. So many topics we have discussed. Now in today's video, in this video, we are discussing the further subtopics of the unit 5 which are left. That is how to control the size of a presentation or a view. Then how many views are available in PowerPoint or in digital presentation Impress part. Okay. Then how to do the formatting with the text. Then how to work with the tables and how to add and format the images in our presentation. So without wasting any more time, let's start with the video tutorial. So for that I have opened my presentation already, which we have created in our last video. Now what do you mean by controlling the size of a view? Now which view we are presently viewing? That is the normal view. जो अभी हम view देख रहे हैं वो एक normal view है, लेकिन अगर मुझे इस view का size control करना है, the size of this view, then how I am going to control it? You can control it from the zoom slider option available on the status bar. जो आपकी status bar है, ये सबसे नीचे जो आपकी window की जो bar है, that is the status bar. यहाँ पे right side में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक zoom slider tab मिलेगी, zoom slider button मिलेगा. From here you can control the view size of your PowerPoint window. ठीक है, जो हमारी पावर पॉइंट की जो विंडोज़ हैं, जो व्यूज़ हैं, जैसे नॉर्मल व्यू है, तो उसका अगर मुझे व्यू कंट्रोल करना है, जूम आउट डिक्रीज करना है, तो आई कैन क्लिक ऑन दिस माइनस बटन. तो आप देख रहे हैं कि साइज़ जो है वो डिक्रीज हो रहा है. और जूम इन करना है, अगर मुझे इंक्रीज करना है साइज़, तो आई एम क्लिकिंग ऑन दिस प्लस बटन. तो आप देख रहे हैं कि साइज़ हमारा इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, हम जूम स्लाइडर से स्लाइड भी कर सकते हैं टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द साइज ऑफ आवर व्यू. ठीक है, यहाँ पे लास्ट में अब आप देखेंगे परसेंटेज डिस्प्ले हो रही है और परसेंटेज के बिल्कुल राइट साइड में एक बटन है. ये बटन यूज होता है कि फिट कर दे, यानी इट इज यूज टू फिट द व्यू इनसाइड द विंडो. ठीक है, यानी अगर मेरा व्यू डिक्रीज्ड है और मुझे उसको एक क्लिक के अंदर इस विंडो के अंदर फिट करना है, तो आई कैन यूज दिस बटन. ठीक है ना, फिट स्लाइड टू करंट विंडो. तो ये बिल्कुल जो प्रॉपर, जो बिल्कुल परफेक्ट व्यू होगा, ठीक है ना, वहाँ पे उसको फिट कर देगा. अगर ये इंक्रीज्ड है, मैंने ज़्यादा ही जूम इन कर दिया है, ठीक है ना, 340% या कुछ भी, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसको वो उस तरह से रिड्यूस कर देगा कि विंडो के अंदर फिट हो जाए. ठीक है, दैट इज हाउ यू कैन कंट्रोल द साइज ऑफ योर व्यू. अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, दैट इज व्हाट आर द व्यूज अवेलेबल इन पावरपॉइंट और इन इम्प्रेस विंडो. ठीक है, इम्प्रेस में यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लिब्रे ऑफिस जो हमारा है, जो ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जस्ट एज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन, डिजिटल प्रेजेंटेशन के नेम है, दैट इज इम्प्रेस. ओके, एमएस ऑफिस में हम उसको बोलते हैं पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को, और लिब्रे ऑफिस में उस सॉफ्टवेयर को बोलते हैं इम्प्रेस. तो बोथ आर सेम. तो जो हमारे व्यूज हैं अवेलेबल, वो हम कैसे देखते हैं? गो टू द व्यू टैब. ठीक है ना, एंड देयर आर ग्रुप दैट इज प्रेजेंटेशन व्यू. यहाँ पे एक ग्रुप है आपका प्रेजेंटेशन व्यू, और यहाँ पे आपको नॉर्मल, आउटलाइन, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू. तो हमारे जनरली 5 व्यूज होते हैं इन पावर पॉइंट और इन इम्प्रेस, दोनों में सेम है. ठीक है, दोनों में सेम है. तो नॉर्मल व्यू हमारा क्या होता है? नॉर्मल व्यू इन विच व्यू वी एक्चुअली वर्क. नॉर्मल व्यू होता है जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है पावर पॉइंट का या इम्प्रेस का, वेयर वी एक्चुअली वर्क विद आवर स्लाइड, जहां पे हम वर्किंग करते हैं.
ठीक है, नॉर्मल व्यू में ही हम सारी वर्किंग करते हैं स्लाइड्स के साथ, ठीक है। अगर हमें स्लाइड में कोई कंटेंट जो हमें इंसर्ट करना है, टेक्स्ट इंसर्ट करना है, ग्राफिक्स इंसर्ट करने हैं, ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने हैं, तो वॉट एवर वी आर डूइंग इन द नॉर्मल व्यू। तो बाय डिफॉल्ट दिस इज द नॉर्मल व्यू, फाइन। इसके बाद हमारा आता है आउटलाइन व्यू। नाउ व्हाट इज आउटलाइन व्यू? आउटलाइन व्यू में क्या होता है, इट ओनली डिस्प्लेस द टेक्स्ट ऑफ द स्लाइड। अगर अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल व्यू में, तो आपको ग्राफिक्स भी विजिबल है, जो इमेजेस लगी हुई हैं, ठीक है ना, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और टेक्स्ट भी। बट इन आउटलाइन व्यू इट विल ओनली शो द टेक्स्ट पार्ट। तो व्हेन वी क्लिक ऑन दिस आउटलाइन व्यू, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है ना, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सिर्फ आपको क्या विजिबल है, ओनली द कंटेंट टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना, सिर्फ वो विजिबल है। लेकिन अगर इसको मैं दोबारा से नॉर्मल व्यू पे जा रहा हूँ, तो लेफ्ट साइड में आपको पूरी स्लाइड का जो कंटेंट है वो विजिबल है विद ग्राफिक्स। तो आउटलाइन व्यू ओनली शोज द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड, इट इज यूज्ड टू व्यू द टेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्लाइड, नथिंग एल्स। स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है, स्लाइड शॉर्टर में जितनी भी आपकी टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है ना, दैट विल रिफ्लेक्ट, दैट विल अपीयर इन अ सिंगल विंडो एज अ थंबनेल। तो जो स्लाइड शॉर्टर होता है, दैट इट डिस्प्लेस द थंबनेल व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ये मैंने स्लाइड शॉर्टर पे क्लिक किया और आप देखेंगे आप कि जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं 14, 16, 18, 19, उनके सबके थंबनेल व्यूज हमें विजिबल हैं इन अ सिंगल विंडो, फाइन। तो स्लाइड शॉर्टर व्यू किस लिए यूज होता है, बिकॉज इट डिस्प्लेस द थंबनेल व्यू, और यू कैन से मिनिएचर व्यू। आपकी जो स्लाइड्स हैं, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के अंदर, उनका एक छोटा व्यू, मिनिएचर व्यू डिस्प्ले करता है स्लाइड शॉर्टर। इसके बाद हमारा आता है रीडिंग व्यू, या आप कह सकते हैं नोट्स पेज। नोट्स पेज में क्या होता है, अगर मैं नोट्स पेज ओपन करता हूं तो सिंगल स्लाइड हमारी आएगी, वन आफ्टर दी अदर, ठीक है ना, एंड आफ्टर एवरी स्लाइड यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन फॉर एडिंग अ टेक्स्ट, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। सपोज तो मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया, दैट इज इंट्रोडक्शन अबाउट प्रेजेंटेशन, फाइन। मैंने यहाँ पे एक नोट्स ऐड कर दिया है, इंट्रोडक्शन अबाउट प्रेजेंटेशन। तो व्हेन आई विल डिलीवर द प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस, दिस पर्टिकुलर नोट विल नॉट बी विजिबल टू देम, बट इट विल बी विजिबल टू मी। मुझे ध्यान रहेगा कि ये वाली स्लाइड पे मुझे बोलना क्या है। तो नोट्स हम इसलिए, नोट्स पेज व्यू में क्या होता है, that notes page view will display the notes or summary you have added to your slide. Notes page में कैसे होता है, notes page view will display the text portion or the summary portion which you have added to the individual slide. अगर मैं इसको नॉर्मल में लेके जाता हूं, तो नॉर्मल वे में आपको ये पर्टिकुलर नोट्स विजिबल नहीं है, ठीक है। नोट्स पेज में आएंगे तो आपको जितने भी आपने नोट्स इंडिविजुअल स्लाइड्स में ऐड की हैं वो सब आपको विजिबल होंगे वन आफ्टर द अदर। दिस इज स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट हमारा व्यू आता है रीडिंग व्यू। अब ये रीडिंग व्यू क्या होता है, रीडिंग व्यू विल गिव यू द डेमो, ओके, दैट हाउ योर प्रेजेंटेशन विल लुक लाइक, हाउ योर प्रेजेंटेशन विल रन, ठीक है ना, when you present it to the audience but within the PowerPoint window। यानी जब आप स्लाइड शो रन करेंगे F5 का यूज करते हुए, उसका एक डेमो आपको यहीं पे मिल जाएगा when you will run the reading view, but it will give you that complete demonstration that how your PowerPoint presentation will run in front of the audience। लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, स्लाइड शो पूरी स्क्रीन पे रन होता है, लेकिन रीडिंग व्यू किस में रन होगा, इनसाइड दी पावर पॉइंट विंडो। तो अगर मैं रीडिंग व्यू पे क्लिक कर रहा हूं तो आप देखेंगे कि जो मेरी स्क्रीन है वो लार्ज हो गई है, बट इट इज नॉट दी फुल स्क्रीन। वो फुल स्क्रीन नहीं है, वो पावर पॉइंट विंडो के अंदर ही चल रही है, वन आफ्टर दी अदर। यानी जितने भी मैंने ट्रांजिशन इफेक्ट या एनिमेशन इफेक्ट लगाए हैं, मुझे सब विजिबल होंगे, बट इनसाइड दी पावर पॉइंट विंडो। लेकिन अगर यही चीज मैं F5 को यूज करता हूं, स्लाइड शो रन कर रहा हूं, तो वो सारी चीजें मुझे फुल स्क्रीन पर विजिबल होंगी। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग व्यू एंड द स्लाइड शो व्यू।
रीडिंग व्यू में हमें जितनी भी हमने एनिमेशन लगाई हैं, जितनी भी ट्रांजिशंस हैं हमारी, वो सब विजिबल होंगी, ठीक है ना, बट इनसाइड दी पावर पॉइंट विंडो के अंदर ही। लेकिन जब हम स्लाइड शो रन करेंगे यूजिंग F5 की, व्हेन वी रन द स्लाइड शो, it will go on full screen. This is the only difference. So we have only 5 views in total: normal view, outline view, slide sorter, and notes page and reading view. Fine. Now formatting text. अब ये formatting text क्या है? Formatting text means that, इसको चेंज कर देते हैं एक बार नॉर्मल व्यू में, जो भी हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया है अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, how we are going to format it. Formatting means how to change the appearance of the text. तो टेक्स्ट का अपीयरेंस अगर आपको चेंज करना है तो select the text, then go to the home tab, select the particular font style. आप कोई भी font style choose कर सकते हैं. You can select the font size, okay, accordingly. You can choose the font color. So one after the other you have to do all the part. You can make it bold, italic, whatever you want. You can change the alignments. अगर आपको alignment change करना है अपने text का तो you can do so. Okay. If you want to insert bullets and numbering, अगर आपको अपने text में कुछ bullets या numbering insert करनी है, और अगर आपको एक नया text भी insert करना है, suppose this is a text we have on our slide and you want to insert some more text, तो अगर आपको इंसर्ट करना है एक नया टेक्स्ट तो हाउ यू कैन डू दैट, गो टू द इंसर्ट टैब, ठीक है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे आप और इंसर्ट टैब पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स. यू विल सेलेक्ट द ऑप्शन टेक्स्ट बॉक्स एंड देन यू विल ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स. ये हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर दिया है. देन गो टू द बुलेट्स एंड नंबरिंग. अगर आपको बुलेट्स लगानी है तो यू कैन चूज द बुलेट्स पार्ट, ओके. एंड इफ यू वांट टू यूज नंबरिंग तो यू कैन यूज द नंबर्स 1 2 3 and then you can start typing the text. अब ये black color में है, इसको हम select all करेंगे and then we will change the text color to white. We'll increase the text size, make it bold, ठीक है. We can increase the line spacing also. अगर हमें line spacing बढ़ानी है तो we can use this option. तो this is all about formatting. आपको formatting करनी है तो formatting करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, we need to select that text. हमें टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, देन वी नीड टू डू द फॉर्मेटिंग. अलाइनमेंट करना है हमें, लेफ्ट, सेंटर, राइट, या हमें बुलेट्स या नंबरिंग अपने टेक्स्ट में ऐड करनी है, और वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग, सो वी कैन डू दैट पार्ट, ठीक है. नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज वर्किंग विद टेबल्स. इफ वी वांट टू इंसर्ट टेबल्स इन आवर स्लाइड, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं सेम उसमें एक नई स्लाइड इंसर्ट कर रहा हूँ, ब्लैंक स्लाइड, ठीक है. इफ़ यू वांट टू इंसर्ट द टेबल्स इन आवर स्लाइड, अगर मुझे अपनी स्लाइड में टेबल इंसर्ट करनी है, देन गो टू द इंसर्ट टैब, सेलेक्ट द ऑप्शन टेबल्स, ठीक है. वी हैव डिफरेंट मेथड टू इंसर्ट टेबल्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन वर्ड, एंड दैट इज डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. ग्रिड मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. वी कैन यूज़ द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स और वी कैन ड्रॉ द टेबल, ठीक है. तो यहाँ पे हम ग्रिड मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमें टेबल ड्रॉ करनी है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो वी हैव इंसर्टेड द टेबल, ठीक है. हाउ टू एंटर एंड एडिट डेटा. अगर मुझे यहाँ पे कोई डेटा एंटर करना है तो सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करिए बाय क्लिकिंग इनसाइड द सेल जहाँ पे भी आपको डेटा इंसर्ट करना है, एंड देन राइट द टेक्स्ट, सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, एड्रेस, मोबाइल, ठीक है. यहाँ पे आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4. देन यू कैन राइट नेम, अमित, अभिनव, आदित्य, Ansari. So you can write this much. This is entering the data, ठीक है ना, inside the table. अब इसके बाद आता है एडिटिंग. एडिटिंग मीन्स सपोज यहाँ पे आपको नेम की जगह कुछ और लिखना था, दैट इज कॉल्ड एडिटिंग. एडिटिंग का मतलब होता है टू मेक द करेक्शन और टू चेंज द एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन.
तो अगर मुझे ये डेटा को रिमूव करना है, नेम को रिमूव करके मुझे कुछ और लिखना है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डिलीट स्टूडेंट नेम, इसको हम बोलते हैं एडिटिंग। तो अगर आपको कहीं भी टेबल में एडिटिंग करना है तो फर्स्ट यू वांट टू रिमूव दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट and then write the text again, and that's it. That is called editing. Fine. Now selecting a cell. अगर मुझे एक single cell को select करना है, then how I am going to do that part? I need to select a single cell. So to select a single cell, just bring your cursor to the edge of this cell and click. अगर आप देख रहे हैं अभी ये जो हमारा ये जो सेक्शन लिखा हुआ है जिस सेल में, ठीक है ना, तो हमारा एक जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, ठीक है ना, दैट इज नॉर्मल, बट व्हेन आई ब्रिंग इट टू द नियर द एजेस इट विल टर्न इन अ स्मॉल, ठीक है ना, ब्लैक एरो। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सेल। अगर मुझे पूरी सेल को सिलेक्ट करना है, सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है, देन हाउ आई कैन डू दैट? ब्रिंग द कर्सर, द पॉइंटर ऑफ द माउस टू द लेफ्ट एज ऑफ द सेल, इट विल चेंज into the small black arrow and you can click so that you can select a cell. Multiple cell को select करना है, bring it, select, keep it pressed and then hover it over the cells and release the mouse button. This is how you can select cell or multiple cells. दूसरा आता है अगर आपको सिंगल रो या सिंगल कंप्लीट कॉलम या कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना है तो ब्रिंग योर कर्सर, माउस का जो पॉइंटर है उसको आप रो कॉलम के ऊपर लेके आइए, इट विल चेंज इनटू अ स्मॉल ड्रॉप डाउन ब्लैक एरो, क्लिक एंड यू विल बी एबल टू सिलेक्ट द कंप्लीट कॉलम, इंडिविजुअल कॉलम्स। ठीक है, क्या करना है आपको? आपके जो माउस का जो कर्सर है, जो पॉइंटर है, ब्रिंग इट एट द टॉप ऑफ द कॉलम, इट विल चेंज इनटू अ स्मॉल ब्लैक ड्रॉप डाउनवर्ड एरो, ब्लैक डाउनवर्ड एरो, click there and you will be able to select the complete column in a single click. अगर वैसे भी आपको नॉर्मली करना है तो आप मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए, दैट विल सेलेक्ट द कॉलम। कंप्लीट रो को सेलेक्ट करना है तो रो के लेफ्ट साइड में अपने माउस का जो पॉइंटर है वो लेके आइए, इट विल अगेन चेंज इनटू दी, ठीक है, स्मॉल ब्लैक एरो, क्लिक एंड यू विल बी एबल टू सेलेक्ट दी कंप्लीट रो। ठीक है, नॉर्मली सेलेक्ट करना है तो पूरी रो को आपको क्या करना है, जो आपका कर्सर है उसको आप पूरी रो पे होवर कर दीजिए। ठीक है, मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है, यू कैन ईजिली डू दैट पार्ट लाइक दिस। ठीक है, एडजस्टिंग रो हाइट एंड कॉलम विड्थ, अगर आपको रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो ब्रिंग योर माउस पॉइंटर इन द मिडिल ऑफ द टू कॉलम्स, दो कॉलम के बीच में आप अपने माउस के जो पॉइंटर है उसको लेके आइए, क्लिक, कीप इट प्रेस्ड एंड यू कैन डिक्रीज और इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम। देखिए, ठीक है, सेम विद द रो हाइट, दो रो के बीच में अपना पॉइंटर जो है माउस का वो लेके आइए, यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रो हाइट। इसको हम सेकेंड मेथड जो है हमारे पास है, सेलेक्ट द सेल, गो टू द लेआउट एंड यू कैन सेलेक्ट द हाइट। आप हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं या कॉलम की विड्थ को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं। फाइन। टेबल बॉर्डर्स, अगर आपको टेबल का बॉर्डर चेंज करना है देन हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? सेलेक्ट द टेबल, गो टू द डिज़ाइन, ठीक है, और ये आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है बॉर्डर के अंदर बॉर्डर, तो आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर्स लगाने हैं, ठीक है, या सिर्फ टॉप बॉर्डर चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन सेलेक्ट। ठीक है, तो यू कैन चेंज द बॉर्डर। बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है या स्टाइल चेंज करना है, शेडिंग करनी है, तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं यूजिंग द शेडिंग कलर, कोई भी आप कलर चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन चॉइस। टेबल का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, वॉट एवर स्टाइल यू वॉन्ट यू कैन चूज। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टेबल्स। लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इंसर्टिंग द इमेजेस एंड फॉर्मेटिंग। हम इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे या ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करेंगे और उनकी फॉर्मेटिंग। Now to insert the image, go to the insert tab, select the option pictures, okay, the picture option will help you, आप कोई भी particular image select कर सकते हैं which is saved in your computer, जो आपके कंप्यूटर में saved है, ठीक है, select it and click on insert
तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ इमेज. ठीक है, टू इंसर्ट अ इमेज, go to the insert tab, select the option pictures, select the image and click on insert. तो you can insert the images. Fine. अब insert करने के बाद आती है moving या resizing. सबसे पहले हम देखते हैं resize. अब ये जो image हमने add की है, ठीक है ना, the size of the image is quite large but we want to reduce it. हमें इसको reduce करना है. तो click on the image, select it. Now you will see that there are borders and borders are with small, ठीक है ना, circles. तो ये जो circles हैं, they help us to reduce the size or increase the size. यहाँ पे अपना माउस का जो पॉइंटर है वो लेके आइए, click, keep it pressed and you can either reduce or you can either increase the size of the image. Fine. This is how you can reduce or increase the size of the image using these corner, ठीक है ना, पॉइंट्स, जो आपकी इमेज के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, उसको रिड्यूस कर सकते हैं आप. ठीक है, और यू कैन सेलेक्ट द पिक्चर, गो टू द फॉर्मेट टैब, देयर इज अ साइज ग्रुप वेयर इट इज हाइट एंड विड्थ गिवन, तो यू कैन यूज दिस ऑप्शन ऑल्सो टू रिड्यूस और टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर इमेज. फाइन. इसके बाद आता है रोटेटिंग द इमेज. रोटेटिंग का मतलब है अगर आपको इस इमेज को रोटेट करना है टू अ सर्टेन डिग्री, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑन द टॉप देयर इज अ, ठीक है ना, अ काइंड ऑफ यू टर्न सिंबल. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कर्सर को लेके आएंगे, विल प्रेस द कर्सर, कीप इट प्रेस्ड एंड देन यू कैन रोटेट इट वेयरएवर यू वांट. जितने भी डिग्री पे आपको रोटेट करनी है अपनी इमेज, यू कैन यूज इट. ब्रिंग योर माउस पॉइंटर, ठीक है ना, ओवर दिस यू टर्न बट सिंबल, प्रेस द माउस बटन, कीप इट प्रेस्ड एंड देन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज अप टू यू टू हाउ मच डिग्री यू वांट टू रोटेट. ठीक है, इसके बाद आता है मूविंग. मूविंग का मतलब है दैट टू मूव द इमेज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. ये लोकेशन है अभी मेरी इमेज की, मुझे इस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे करना है, तो आइदर यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप. ठीक है, ड्रैग करिए और ड्रॉप कर दीजिए, और यू कैन हैव द ऑप्शन कंट्रोल एक्स, कट, गो टू अ न्यू स्लाइड, पेस्ट. दैट इज कॉल्ड मूविंग. ओके, कंट्रोल एक्स, कट, गो टू अ न्यू स्लाइड, पेस्ट, दैट इज मूविंग. फाइन. अनदर इज ग्रुपिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुपिंग? ग्रुपिंग का मतलब होता है जो हम इंसर्ट कर रहे हैं. सपोज आई एम इंसर्टिंग सम शेप्स. यहाँ से हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं कुछ. ये हमने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट की, देन आई हैव सेलेक्टेड द नेक्स्ट शेप, देन अनदर शेप. तो व्हाट वी हैव ऑन अ सिंगल स्लाइड, वी हैव मल्टीपल शेप्स और ऑब्जेक्ट्स. नाउ इफ वी वांट टू मूव दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो व्हाट वी हैव टू डू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली इन ऑब्जेक्ट्स को मूव कराना पड़ेगा. ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मूविंग दीज ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअली फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. नाउ व्हाट इज ग्रुपिंग? ग्रुपिंग हेल्प अस टू मूव दीज ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रीट देम एज अ वन. यानी अगर मैं इन ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर देता हूँ, यानी एक साथ इनको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव ना करके एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट बिहेव करेंगे. ओके, नाउ हाउ टू डू दिस ग्रुपिंग? सबसे पहले हम इनको अरेंज कर देते हैं. टू डू द ग्रुपिंग यू नीड टू सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स. आइदर सेलेक्ट द फर्स्ट, प्रेस द कंट्रोल की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट, एंड देन यू कैन यूज द शॉर्टकट की, दैट इज कंट्रोल प्लस जी. या तो आप कंट्रोल प्लस जी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या आप सेलेक्ट कर सकते हैं Format tab of the picture tool, and in the last arrange group is there. Go to group option and select the option group. ये हमारा अब क्या हो गया है, जो हमारी इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स थी, जो शेप्स थी, वो ग्रुप हो गई हैं. अगर मैं अब इनको मूव करूंगा तो they will move as a single object. यानी अगर मैं किसी एक इमेज को मूव कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल शेप को मूव कर रहा हूँ, तो वो अकेले ना होके एक ग्रुप में मूव हो रही है. रिड्यूस करूंगा साइज, तो सबका साइज रिड्यूस होगा. ठीक है,
This is the benefit of grouping. Ungrouping कैसे करते हैं? Select this, then go to the format, go to the group option and select the option ungroup. अब ये देखिए, these will behave as a individual objects. तो grouping का benefit सिर्फ ये है that grouping help us to group all the objects together and behave as a one. They will not behave as individual, but they will behave as a single object. That is the help of grouping. Select करिए सारे objects. Control G is the shortcut key for grouping. ये group हो गए हैं. Ungroup करना है. Select करिए सारे object. Okay. Then go to the format. Then go to group option and use the option that is ungroup. So they will behave as individual. Fine students. I hope you have understood each and every topic we have discussed. Then one more video will be coming up for this unit 5 digital presentation. That will be the last part of this unit, okay, in which we will discuss about the animations and transitions of the presentation and the very important topic, that is master slide. So please stay tuned for more updates. If you are new to this channel, then please subscribe the channel and press the bell icon for latest updates and notification. And if you have learned something from this video, then please give this video a thumbs up and share it with your friends and family members. So thank you, dear student. Thank you so much.